Hello everyone, welcome to Babu Banasidas University. Myself Akash Vashne, Assistant Professor, Department of Electrical Engineering. In this video, I am discussing sequential circuit. So firstly, we know what is the difference between combinational circuit and sequential circuit. In the previous lecture, we see about the logic gates and combinational circuit. Now we will see what is mean by sequential circuit. So actually in the sequential circuit there is only one difference, that there is a feedback path. So in sequential circuit feedback path is provided. ठीक है, तो this is only difference in the sequential circuit. Feedback path means that it will have some memory. So it will have some memory storage. Memory storage. So this is the basic difference between sequential circuit. In the combinational circuit there is no any feedback path, but in the sequential circuit there is a feedback path. Feedback path means it have some memory storage. So now we will see how we will design a sequential circuit. In the designing of sequential circuit, one thing you have to remember, one thing you have to learn, that is latch. What is latch? So before going to the sequential circuit, we will discuss the latch. So actually latch means that it is a sequential circuit. It will made up of from NAND gate. It will made from NAND gate, or we can say it can be also developed by NOR gate. With the help of NAND gate and NOR gate we can develop the latch. So now see, firstly we will see NAND latch. We will see NAND latch. So in the latch there is a NAND gate or NOR gate in a cross coupled form. Suppose this is the NAND gate, we can apply here NAND gate, and here we can also use a NAND gate. These two NAND gate are joined in a cross coupled manner. Suppose we can provide here input S, here we provided input R. This is the output. Now this output is again fed to the NAND gate, and this output is fed to this NAND gate like this fashion, you can see. Okay, now this is the Q output and this is the Q complement. The output are present in the complement form. If this is Q, then this is the Q complement. So you have to mention, you have to remember that this is only the Q and this is the Q complement. You not use here Q complement and Q. This is the wrong concept. But because in the flip flop we can use here Q complement, here Q. But in the latch we can use here Q only and here Q complement. Whenever NAND gate or NOR gate are cross coupled in this fashion, we can call this latch. So latch is made up of NAND, that's why it is called a NAND latch. Okay, now after making a latch circuit, we can develop a truth table. So suppose here we write S and R, and here we can write Q n plus 1. Qn plus 1 represent the next state. Actually there are three stages here. Qn means present state. Qn is present state, and Qn plus 1 is next state, or before Qn we can say Qn minus 1. Qn minus 1 is previous state. These are the term and terminology used in the latch and sequential circuit. So you have to remember. And Q is the output and Q bar is the complement output. Okay, complement output,
and S and R are these are the input we can give to the NAND gate. Now we develop a truth table. Here we can write a truth table. Okay, now we can given S equals to 0, R equals to 0. Suppose we can give 0 and 0. After that we can give 0 and 1, then we can give 1 and 0, then we can give 1 and 1. So suppose we can consider this case. Firstly we can go through the condition 0 and 1, after we can do 0 and 0 condition. So suppose if we apply here 0 and here we can apply 1. If we apply here 0 and here we can apply 1. Now consider that the output is 1 at that stand, at the previous stand, and then this Q is 1 and Q complement becomes 0. Now this 1 goes to here, this 1 goes to here, तो 1 and 1 is fed to the NAND gate. तो 1 of 1 NAND gate क्या हो जाता है, जब NAND gate में 1 and 1 हम देते हैं तो NAND gate क्या करता है, डॉट मल्टीप्लीकेशन करता है, देन उसका कॉम्प्लीमेंट करता है. तो 1 into 1 क्या होता है, 0 होता है. 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है आपका, 1 हो जाता है. 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है आपका, 1 हो जाता है. इट इज़ क्लियर टू यू. जब हम 1 और 1 फैड करेंगे हेयर तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 and 1 जब फैड करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, 1 and 1 NAND गेट में आ रहा है तो 1 into 1 क्या होगा 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या होगा 0. तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 0 ही मिल रहा है. अब ये 0 हमारा क्या चला गया, S वाले में चला गया. तो यहाँ पर क्या हुआ 0 और 0 है, 0 0 किस में जा रहा है, NAND गेट में जा रहा है. तो जब NAND गेट में 0 0 देते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 मिलता है. तो इसका मतलब क्या है, जब S की वैल्यू 0 है और R की वैल्यू 1 है तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है. तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेट में हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है. इट इज क्लियर टू यू. अब हमने क्या किया, सपोज करो इस 0 की जगह हमने कह दिया कि बच्चे हम यहाँ पर 1 और 0 अप्लाई करें. इफ वी अप्लाई हियर 1 and 0, if we apply here 1 and 0 or we consider the output such as only, if we apply this 1 to this, तो 1 and 0 1 0 जब हम NAND गेट में देंगे तो 1 0 क्या होता है 0, 0 को कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 हो जाता है. तो हमें क्या मिल रहा है Q कॉम्प्लीमेंट क्या मिल रहा है 1. तो इसका मतलब Q क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए. तो अब ये 1 हमारा यहाँ जाएगा, तो ये हम 1 पहले से दे रहे थे और 1 दे रहे थे, 1 1 का हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा. इसका क्रॉस एकदम ठीक चल रहा है. इसका मतलब हमें आउटपुट क्या मिला 0 मिला. 0 आउटपुट का मतलब क्या, नेक्स्ट स्टेट में क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है. तो 0 मिला है. जब हम 1 0 अप्लाई कर रहे हैं तो हमें Qn+1 कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है. ठीक है. अगर मैं सपोज करो 1 0 का केस हो गया, अगर मैं 1 1 अप्लाई करूंगा, इफ वी अप्लाई 1 1 टू दी NAND latch, ओके, वी विल डेवलप वन मोर सर्किट, यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली. सपोज we will develop here once more. This is the NAND gate, this is the NAND gate. Here we can apply S, here we can apply R, we can give in the cross coupled form. This is the Q and this is the Q complement. From this we can fed to the this input. Okay, we consider 0 0 0 1 1 0 1 1. This is we developed here S and R. Here we can write Qn+1 next state. So we can give the 1 1. So if we apply 1 here and 1 here, suppose this is 0 and this is 1. If we apply 0, then we can get complement is 1 only. If this 1 is goes to this side, तो 1 and 1 goes to this NAND gate, फर्स्ट NAND गेट. तो 1 1 का जब NAND गेट में देंगे तो 1 1 क्या होता है 1, उसका कॉम्प्लीमेंट होता है तो हमें क्या मिलता है 0 मिलता है. 0 मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है. देन जब हमारा ये 0 मिलता है, फिर हम जब ये 0 यहाँ देंगे, जब ये 0 यहाँ देंगे तो 0 1 क्या हो जाएगा, 0 1 करने में 0 मिलेगा 1 मिल जाएगा. इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रीवियस आउटपुट था वही हमें नेक्स्ट स्टेज में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. जो हमारा प्रीवियस आउटपुट था वही नेक्स्ट स्टेज में मिल रहा है. तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो सेम आउटपुट दे रहा है इन दी नेक्स्ट स्टेज जो कि प्रेजेंट था. अब तुम ये मत सोचना कि सर हमेशा 0 1 लेके क्या ले रहे हैं. अगर आप यहाँ पर 1 0 ले लो तब भी आप चेक करके देख लो. सपोज अगर मैं 1 0 अप्लाई करता हूँ हियर, दिस इज S एंड दिस इज R, एंड वी कैन मेक लाइक इन दिस फैशन.
this is q and this is q complement. Suppose we can make this 1 and this is 0. We apply here 1 and 1, we apply 1 and 1, then this 0 goes to this side. If 1 0 goes to NAND gate, तो 1 0 क्या आउटपुट आएगा, 1 0 मतलब 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो 1 ही आ रहा है. अब ये 1 यहाँ जाएगा तो 1 1 NAND गेट में जा रहा है, तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 एंड इसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो देखो वही मिला, 1 0 मिला. इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट था वो वही है जो हमारा प्रीवियस स्टेट में है. तो इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, QN लिख दिया. और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, जब हम 1 0 अप्लाई कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था. इस केस में हमें 1 मिल रहा था, इस केस में हमें 0 मिल रहा था. अब हमें ये कंडीशन देखनी है, जब हम 0 0 अप्लाई कर रहे हैं NAND लैच में तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है. ठीक है, अब आप देखो कैसे देखेंगे. सपोज करो कि यहाँ पर मैंने ये NAND गेट बना दिया एंड वी कैन अप्लाई हेयर S एंड वेयर वी कैन आल्सो मेक ए NAND गेट इन दिस फैशन. वी कैन अप्लाई हेयर R, दिस इज Q एंड दिस इज Q कॉम्प्लीमेंट. क्रॉस कपल फॉर्म में हमें देना ही पड़ेगा. यहाँ पर मैंने लिख दिया Q कॉम्प्लीमेंट एंड सपोज वी कैन मेक इन दिस फैशन. अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 0 0 0 1 1 0 1 1. मैंने 3 पॉसिबल केस तो देख लिए कि 0 1 जब दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यहाँ पर QN मिल रहा है. दिस इज S एंड दिस इज R एंड दिस इज QN प्लस 1. ये हमें आउटपुट चाहिए. तो इतना तो हमने देख लिया. अब हम ये देखना चाहते हैं कि जब हम 0 0 अप्लाई कर रहे हैं, जब हम S और R के टर्मिनल पर 0 0 इनपुट दे रहे हैं, सपोज करो मैंने ये अभी मान ली 0 और ये मान लिया मैंने 1. जब ये 1 मेरा यहाँ जाएगा तो 1 यहाँ चला गया, 0 इंटू 1 NAND गेट में जा रहा है, तो 0 इंटू 1 NAND गेट में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 क्या होता है आपका 0 होता है. उसका कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे तो हमें 1 मिल रहा है. क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है. अब जब ये 1 हमारा यहाँ जाएगा तो 1 इंटू 0 जब करेंगे तो 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा. तो ये भी 1 मिल रहा है. मतलब कहने का मतलब ये कंडीशन में दोनों में 1 1 मिल रहे हैं, दोनों 1 मिल रहे हैं. ऐसा नहीं हो सकता है. अगर ये 1 है तो इस कॉम्प्लीमेंट को क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए. बट जब हम SR इनपुट पर 0 0 अप्लाई कर रहे हैं तो हमें दोनों टर्मिनल पर 1 1 मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना भाई. ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब ये Q की वैल्यू 1 है तो इस केस में तो Q कॉम्प्लीमेंट आपका 0 आना चाहिए. अगर ये 0 है तो ये 1 आना चाहिए. इसका मतलब इस रेस्पेक्ट में इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमको नेक्स्ट स्टेट में आउटपुट क्या मिल रहा है, इनवैलिड मिल रहा है. आउटपुट क्या मिल रहा है, इनवैलिड मिल रहा है. इट इज क्लियर टू यू. तो ये आपकी जो मैंने टेबल बनाई है, ये टेबल आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या किस तरीके से हमने टेबल डेवलप की है. क्लियर है कि नहीं क्लियर है. अब सेम तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि NOR लैच कैसे डेवलप करते हैं. जिस तरीके से अभी मैंने क्या बताया आपको, NAND लैच कैसे डेवलप करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा. NAND लैच में मैंने क्या किया, SR इनपुट दिए, SR इनपुट में NAND गेट को क्रॉस कपल फॉर्म में रखा और उसके बाद हमने देखा 0 0 पे इनवैलिड मिल रहा है, 0 1 पर 1 मिल रहा है, 1 0 पर 0 मिल रहा है, 1 1 जब दे रहे हैं तो होल्ड स्टेट मिल रहा है. ठीक है, इसको हम कभी कभी सेट स्टेट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका रीसेट स्टेट बोलते हैं. ठीक है, आप लोग लिख लेना, दिस स्टेट इज कॉल्ड सेट बिकॉज जब आउटपुट 1 जब 0 1 अप्लाई करते हैं तो 1 मिलता है सेट, जब 1 0 देते हैं 0 मिलता है तो रीसेट. दिस इज होल्ड स्टेट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज होल्ड स्टेट. दिस इज इनवैलिड, सेट, रीसेट एंड होल्ड. अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम NOR लैच को डेवलप करेंगे. इट इज आपको क्लियर हो रहा है ना NOR लैच. तो NOR लैच अब देखते कैसे होगा. तो राइट NOR लैच. तो NOR लैच में क्या हो रहा है कि अब हम क्या करेंगे, NOR गेट की हेल्प से क्या करेंगे, लैच को बनाएंगे. तो हमने क्या कर दिया, हमने NOR बना दिया. हमने कह दिया दिस इज NOR एंड दिस इज ऑल्सो NOR. हियर वी अप्लाई S, हियर वी अप्लाई R, हियर वी अप्लाई. याद रखना क्रॉस कपल में ही हमें इनपुट देना है, तभी हम लैच बनाएंगे. तो यही तभी ये लैच की प्रॉपर्टी है. यहाँ हमने कह दी दिस इज Q एंड दिस इज Q कॉम्प्लीमेंट. अब यहाँ पर आप क्या करना है, सेम इसी तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करना है जिस तरीके से मैंने बताया. बट हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आप लोग मिस्टेक करोगे, जब आपको NOR लैच बनाओगे तो NOR लैच में यहाँ पर ये Q नहीं होता है, यहाँ पर ये क्या हो जाता है, Q वार होता है. मतलब ये कॉम्प्लीमेंट होता है और ये क्या हो जाता है, विदाउट कॉम्प्लीमेंट होता है. तो ये एक डिफरेंस याद रखना. जब आप NAND लैच से बना रहे हो तो हमारा पहला वाला क्या होता है, Q होता है और उसके बाद वाला क्या होता है, Q कॉम्प्लीमेंट होता है. बट इस केस में क्या होता है, दिस इज Q कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज ओनली Q. ये नॉर्मल आउटपुट है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है. तो ये आपका NOR लैच है. तो NOR लैच में अब वही सेम तरीका, यहाँ पर S और R दिया, यहाँ पर हमने SR दिया और यहाँ पर QN+1 दे दिया.
दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 हो गया हमारा। तो अब क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, 0 0 0 1 1 देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक एक करके कंडीशन को देखेंगे। जब हम 0 1 अप्लाई करेंगे, जब मैं यहाँ पर 0 अप्लाई करूँगा और यहाँ पर जब 1 अप्लाई करूँगा, तो सपोज करो मैंने यहाँ पर ले लिया, सपोज करो 0 ले लिया, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। अब ये 0 यहाँ पर जाएगा, जब ये 0 यहाँ पर जाएगा नॉर में, तो नॉर क्या करता है, ऐड करता है, 0 0 को ऐड करेगा 0, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आ गया। अब ये 1 यहाँ चला गया, 1 1 को ऐड करेगा क्या आएगा, 0, और 0 को कॉम्प्लीमेंट सॉरी 1 1 को जब यहाँ देगा नॉर लेट्स में, तो क्या होगा, 1 1 को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 1 को ऐड करने में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसमें मतलब जब हम 0 1 अप्लाई कर रहे हैं, तो 0 1 जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 1 0 मिल रहा है, 1 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या, इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिला है, 0। सिमिलरली आप जब क्या करोगे, 1 0 अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये आप लोग सेम उसी प्रोसीजर से निकाल कर देखना, कोई इशू नहीं है। और जब आप 1 1 अप्लाई कर रहे हो, 1 1 जब अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर भी क्या मिलेगा, इनवैलिड मिलेगा। इनवैलिड मतलब अभी आपने देखा था कि जब लैंड लैच था तो लैंड लैच में हमें 0 0 पर इनवैलिड मिल रहा था, बट नॉन लैच में हमें क्या होगा, 1 1 के केस में इनवैलिड मिलेगा, और 0 0 के केस में हमें क्या मिलेगा, होल्ड मिलेगा। तो यहाँ पर होल्ड कंडीशन आएगी, यहाँ पर हमारी रीसेट कंडीशन आएगी, और यहाँ पर सेट कंडीशन आएगी, ये इनवैलिड आएगी। तो ये डिफरेंस है ट्रूथ टेबल का इन केस ऑफ नैंड लैच और नॉन लैच, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको याद करना है, इसमें कोई रट्टा नहीं मानना है, आपको खाली कॉन्सेप्ट देखना है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट से हम इस ट्रूथ टेबल को डेवलप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर याद नहीं करनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, व्हाट इज ट्रिगरिंग। What is triggering? Actually, in the flip flop, there is a advantage or there is a application of triggering. Without triggering, flip flop doesn't work. तो firstly हम ये देखते हैं कि triggering होता क्या है. Actually, there are two types of triggering: level triggering and edge triggering. ये दो टाइप की ट्रिगरिंग होती हैं, लेवल ट्रिगरिंग एंड एज ट्रिगरिंग। तो हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कि लेवल ट्रिगरिंग क्या होती है। तो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लेवल ट्रिगरिंग। व्हाट इज लेवल ट्रिगरिंग? तो लेवल ट्रिगरिंग में क्या होता है, जैसे कि हम लोग इस तरीके से कोई क्लॉक पल्स देते हैं, तो अगर इस तरीके की कोई क्लॉक पल्स देते हैं तो हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो ट्रिगर कब करेगा। तो लेवल ट्रिगरिंग में क्या होता है कि अगर हम सिग्नल को इस पॉइंट पर एक्साइट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर क्या होता है, लेवल ट्रिगरिंग होती है। इस पॉइंट पर करना चाहते हैं या इस पॉइंट पर करना मतलब लेवल पर, तो लेवल ट्रिगरिंग में क्या होता है कि हम सिग्नल को ट्रिगर इस पॉइंट पर करेंगे तो वो क्या है, लेवल ट्रिगरिंग होगी। तो लेवल ट्रिगरिंग में क्या होता है कि दो तरह की लेवल ट्रिगरिंग हो सकती है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग एंड negative level triggering. These are the two type of level triggering. In positive level triggering we give signal at that point, so this is called positive level triggering. If we want negative triggering then we can give signal to this point, this is called negative triggering. So actually if you give positive level triggering you will give signal in this fashion, you have to trigger at that point. So this is called positive level triggering. If you want negative level triggering you have to give signal at that point. So this is the meaning of positive level triggering and negative level triggering. अगर हम ट्रिगरिंग नहीं करेंगे, अपने फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर नहीं करेंगे, अभी मैं आगे की क्लास में बताऊंगा कि क्या फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। अगर मैं फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स नहीं दूंगा या ट्रिगरिंग नहीं दूंगा तो मेरा फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा, इसलिए हमें क्लॉक पल्स देनी पड़ती है।
अब एक्चुअली लेवल ट्रिगरिंग को रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि सपोज करो अगर कोई इस तरीके का ब्लॉक बना दे और इस तरीके के ब्लॉक में यहाँ पे एक एरो रखकर लिख दे CLK, तो ये क्या हो गई आपकी निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्लॉक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करती है, तो ये कैसी ट्रिगरिंग है, निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग हो गया। अगर सपोज करो इस तरीके का किसी ने ब्लॉक बना दिया एंड इस तरीके से यहाँ पर CLK लिख दिया, तो ये कैसी ट्रिगरिंग हो गई, पॉजिटिव ट्रिगरिंग हो गई। अगर सपोज डेट इस तरीके का किसी ने सिग्नल बना दिए यहाँ पर सिंपली और इस तरीके का, ठीक है, तो ये कौन सी आपकी हो गई, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग हो गई। अगर सपोज करो इस तरीके का कुछ सिग्नल लगा दी विद बबल लगा के यहाँ पर CLK लिख दिया, तो ये क्या हो गई आपकी निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग हो गई। तो लेवल ट्रिगरिंग आप पहचान लोगे कि क्लॉक देखकर आप समझ जाओगे कि यहाँ पर हम पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग दे रहे हैं या निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एज ट्रिगरिंग क्या होता है, एज ट्रिगरिंग क्या होती है। तो एज ट्रिगरिंग आप देख लीजिए, तो एज ट्रिगरिंग में एज ट्रिगरिंग में 2 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग को हम देख लेते हैं। तो सपोज करो अगर हमारी इस तरह की कोई क्लॉक पल्स है, ठीक है, इस तरह की कोई क्लॉक पल्स है, अगर मैं एज ट्रिगरिंग देना चाहता हूँ, अगर मैं अपने सिग्नल को एक्साइट करना चाहता हूँ, जब कोई सिग्नल की वैल्यू सपोज ये 0 पॉइंट है और यहाँ पर वैल्यू 1 है, अगर सिग्नल हमारा 0 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है, तो उस टाइम पर अगर आप क्लॉक देना चाहते हो तो वो क्या है, एज ट्रिगरिंग है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सर कि अगर मैं 1 से 0 पर जा रहा हूँ, इफ़ यू गो फ्रॉम 1 to 0 और उस पॉइंट पर मैं ट्रिगर करवाऊँ तो वो क्या हो जाएगी, निगेटिव एज ट्रिगरिंग हो जाएगी। तो ये वाली क्या होगी, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। सिमिलरली वी कैन कॉल दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो ये एज ट्रिगरिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पर आप लिख लेना, पॉजिटिव में क्या होगा, if the transition occurs from 0 to 1, 0 से 1 ट्रांजिशन होता है, तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होगी। इफ 1 से 0 ट्रांजिशन होता है तो वो क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हो जाएगी। दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग एंड दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। नाउ व्हाट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें एज ट्रिगरिंग को रिप्रेजेंट करना है, सपोज कोई ये इस तरीके का कोई फ्लिप फ्लॉप बना दिया और यहाँ पर किसी ने ऐसे लिख दिया, क्लॉक दे दी, तो ये क्या है आपकी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, किसी ने बबल के साथ लगा दिया, यहाँ पे एक बबल लगा दी, एरो लगा दिया, तो ये क्या होगी आपकी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग होगी। आपको याद रखना है अगर एरो यूज हो रहा है तो एज ट्रिगरिंग का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर किसी ने इस तरीके से बना दिया, ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन तरीका है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से यूज करता है। यहाँ पर CLK के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दी तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हो गई। और अगर यहाँ पर किसी ने खाली ये कर एरो लगा कर CLK लिख दिया तो ये क्या होगी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हो गई। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रिगरिंग 2 टाइप्स की होती है, लेवल ट्रिगरिंग होती है, एज ट्रिगरिंग होती है। उसमें भी आपने ये देखा कि व्हाट इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, व्हाट इज नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, व्हाट इज पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, व्हाट इज नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। तो ट्रिगरिंग के कॉन्सेप्ट के बाद में नेक्स्ट अपनी जो मेरी वीडियो आएगी मैं उसमें आपको बताऊंगा कि व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप। एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप भी कई प्रकार के होते हैं, SR फ्लिप फ्लॉप होता है, JK फ्लिप फ्लॉप होता है, D फ्लिप फ्लॉप होता है, T फ्लिप फ्लॉप होता है। तो 4 टाइप्स की फ्लिप फ्लॉप हम डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। तो आप तब तक ये रिवाइज करिए और स्टे हैप्पी एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।